My precious children of God, I greet each one of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप प्रत्येक जन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रेमपूर्ण नाम पर प्रेमपूर्ण शुभकामनाएं देती हूँ। Today we have taken the promise verse Matthew 5:30. और आज के दिन हमने प्रतिज्ञा वचन मत्ती 5:13 से लिया है। That verse says, "You are the salt of the earth." और इसमें कहा गया है, तुम पृथ्वी के नमक हो। Yes, my precious friends, you are the salt of the earth. हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आप इस संसार के लिए नमक हो। All of us knew very well that salt is very, very important. और आप सभी को मालूम है, नमक एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है। If we don't put enough salt in the food we prepare, the people will be all the time, they will be finding fault with us. अगर खाने में नमक हो जाए, जो दूसरे जो लोग हैं उसमें गलती लगातार निकालते रहेंगे। Something is missing. This is not at all good, they will say. और वो कहेंगे कि खाने में कुछ कम है, और वो कुछ ना कुछ कहते रहेंगे। So salt is very, very important. और इसीलिए नमक बहुत ही एक अनिवार्य है। In the same way, if we read Mark chapter 9 verse 50, it says, "Have salt in yourselves and have peace with one another." और इसी तरह मरकुस 9:50 में कहा गया है, अपने में नमक रखो, एक दूसरे के साथ शांति से रहो। According to the word of God, our lives should have salt, enough salt. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में पर्याप्त नमक होना चाहिए। That means it should be a blessing to people. और इसका मतलब है कि आप दूसरों के लिए आशीष में हो। Whatever we speak, whatever we do, it should be like adding salt in the food. और हम दूसरों से बात करें या दूसरों से कुछ व्यवहार करें, तो दूसरों के जीवन में वो नमक की तरह जोड़ना चाहिए। If you read Genesis chapter 49 verse 22, Joseph was like that. और अगर आप उत्पत्ति 49:22 को पढ़ेंगे, यूसुफ इस तरह से था। His life was a fruitful wine tree, और उसका जो जीवन था फल अंगूर वाले की तरह था, filled with salt. और उसका जो जीवन था पूरा नमक से भरा था। In the same way, you and me, we should have the salt in our lives. और उसी तरह आप और मेरे जीवन में भी पर्याप्त नमक होना चाहिए। What we have to do to give salt in the food or in our lives? और हमारे जीवन में या भोजन में नमक डालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? Read John 15 verses 7 and 8. आप यूहन्ना 15:7 और 8 वचन को पढ़िएगा। We should abide in the Lord. और हमेशा हमें प्रभु के उपदेश के साथ रहना God चाहिए। says, "If you abide in me, my Father will be glorified, that you bear much fruit and you will be my disciples." और इसमें कहा गया है कि अगर तुम मेरे साथ लगे रहोगे, तब आप प्रभु के नाम की महिमा के लिए अत्यधिक रूप से फल देंगे। My friend, check up your life. मेरे प्रिय दोस्तों, आप अपने जीवन को परखिएगा। Are you a fruit yielding tree? क्या आप फल देने वाले वृक्ष की तरह हैं? Do you have salt in your deed or whatever you do, anything? चाहे आप जो भी कार्य करें उसमें क्या नमक है? And the Lord will be all the time blessing you and you'll shine for His glory. अगर हाँ, तो आप हमेशा प्रभु के नाम के लिए चमकेंगे और उसकी महिमा के लिए रहेंगे। Ask the Lord to fill you with His presence. हाँ, आप प्रभु से कहिए कि प्रभु आप मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे। He will guide you. वो आपकी अगुवाई करेंगे। He will make you the enough salt to produce in your own life. हाँ, प्रभु आपके जीवन में पर्याप्त नमक देंगे और आपके जीवन को आगे बढ़ाएंगे। Now let us pray that God should bless our lives like that. आइए अभी हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे जीवन को इस तरह से आशीषित करे। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father God, thank you, Lord, for the wonderful presence. प्रभु आपने अपनी मधुर उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Wherever 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst. That's what your promise. और आपकी प्रतिज्ञा है, जहाँ 2 या 3 लोग आपके नाम पर एकत्र होते हैं, तब आप उनके बीच में हैं। Even now you are here, oh Father. हाँ प्रभु, आप इस वक्त हमारे बीच में हैं। See the hearts of all your people. हे प्रभु,
प्रभु आप अपने लोगों के हृदय को देखिएगा। How many are having salt in their lives, Father? और कितने लोगों के जीवन में नमक है। If they don't have salt in their lives, Lord, if they cry unto thee, Lord, bless them right now. अगर उनके जीवन में नमक की कमी है और इस वक्त वो रो के प्रार्थना कर रहे हैं, इसी वक्त आप प्रार्थना को सुनकर आशीषित Let them कीजिएगा। have enough salt in their lives, Father. और आज के बाद उनके जीवन में पर्याप्त नमक हो Let them be a blessing to your holy name. और वो आपके पवित्र नाम के लिए आशीषमय हो Supply all the needs of thy children. और आप अपने बच्चों की सारी आवश्यकता को पूरा In कीजिएगा। Jesus' name we pray. और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना। Amen. आमीन। Precious CA Adios Sangma, happy birthday. बहुमूल्य CA Adios संगमा, जन्मदिन मुबारक हो। And dear Mother Mrs. Quintin Sangma, happy birthday to you too. और प्रिय माता श्रीमती क्विंटिन ए संगमा, आपको भी जन्मदिन की ढेरों बधाइयाँ। According to Deuteronomy 7:14, you'll be blessed more than any other people, says the Lord. व्यवस्था विवरण 7:14 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहाँ वचन कहता है तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होगी और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई ना होगा। Father, bless Adios with a better job in the name of Jesus. Glesinchi Sangma, have divine protection and blessing in the job, blessing in the job. पिता डियोस को अच्छी नौकरी से, बेहतर नौकरी से आशीषित करे। ग्लेसिंचिए संगमा को अपनी सुरक्षा दे और नौकरी में आशीष को दे खुदा। Heal Chazel of diabetes and let him be well in Jesus' name by the power of God. चेजिल को डायबिटीज से चंगाई दे परमेश्वर और पूरी तरह से भला चंगा हो जाए यीशु के नाम में, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। And Mrs. Quintin, good health. Lord, let her have a good house, beautiful house. Provide it, Lord, and give them financial blessings. और श्रीमती क्विंटिन के लिए अच्छी सेहत दुआ करते हैं परमेश्वर, एक अच्छा सुंदर खुद का घर उन्हें दीजिए परमेश्वर और आर्थिक आशीषों को दीजिए। Amen. God bless you. इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள், கலந்துகொள்ளಬೇಡಿ, இது நஷ்டப்படுத்துறது। மிஸ் చేయకండి। हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेथसेदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. Yeah, big ball was there. Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा। There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेथसेदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए।